epiglottis and passage of air. So let's talk about epiglottis. So what is epiglottis? As we have discussed in our previous classes about epiglottis, where it is present, what its function is. So let's revise it again. So from the nasal cavity, the air goes into the pharynx. So we know that the pharynx is the common passage for the food and the air. So here is a tricky problem. From the pharynx, there are two passages beginning with nearly same openings, ending into separate ones. Okay, one to the lungs and one to the stomach. One to the lungs to the trachea and the other to the stomach through esophagus. So esophagus connects the pharynx to the stomach, and trachea connects lungs to the pharynx. Okay. Now, talking about, it is important that air goes into one and food into the other. It is also important that food does not enter the tube through which air goes into the lungs, or else the food will accumulate in the lungs. But it was not happening because of the presence of the epiglottis. The movement of food and air is channeled properly by a flap like valve, the epiglottis, that protects the tube to the lungs, prohibiting entry of food. So this is the figure 5a and 5b, and you have to discuss how epiglottis works while breathing or swallowing. The valve is partly closed when we swallow food. It deflects the food down to the stomach and keeps it out of the trachea. A windpipe, which is the route to the lungs. The epiglottis opens more widely when we take a breath and air enters the lungs. Nervous regulation is important in guiding the function of epiglottis and passage of food and air. Let us try to do an activity to feel what happens when we swallow food. Why we are advised not to talk while eating food. So this all things we have discussed in the class, but I will again discuss it to brush up. Okay. So if you see this figure, in this figure, what is happening is, here the epiglottis is open, so that the air from the nasal cavity is so let's choose this color. Okay, so now let's look at here. So this is the epiglottis is open here, that's why the air is freely entering into the trachea. The front one is the trachea. Okay, fine. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एपिग्लॉटिस क्लोज है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस ओपन है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस क्लोज है. तो इसलिए यहाँ पे जब एपिग्लॉटिस क्लोज है तो ये जो सामने वाला चैनल है ना, ये ट्रेकिया है. यहाँ पे फूड नहीं जा रहा है बल्कि पीछे से जा रहा है. दैट इज द ईसोफेगस. ओके फाइन. Okay. So here the epiglottis is open, that's why the air is entering into the trachea. Here the epiglottis is closed, so the food is entering through the esophagus, it is not entering the larynx. So let's zoom out the picture more and look at here. So this thing, so this thing what you are able to see, this thing is your epiglottis. It is closed here, and this thing is your trachea. This passage is the trachea. Okay. And the behind one is the esophagus. So here the air from the nasal cavity is entering the trachea because the epiglottis is open. I hope you understood. So what happens when you are talking as well as you are trying to swallow? So when you are trying to swallow, the epiglottis should be closed so that the food enters the esophagus and the food do not enter the trachea. नहीं, खाना जो है ट्रेकिया में नहीं जाना चाहिए, इसोफेगस से जाना चाहिए, इसलिए एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है. लेकिन आप साथ में बात भी करना चाहते हो तो वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे आपका एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है तो खाना यहाँ चला जाता है, इसलिए आपको क्या होता है,
you cough and you take out the food or water, whatever went into the trachea. Okay, fine. So this is the function of the epiglottis. So let's do an activity to understand further about it. So this is the activity 1 of your respiration chapter. So if you see here, what you have to do is keep your palm around an inch away from the nose. What you do, uh, keep your palm around an inch away from the from your nose. Feel your breathing out. So you keep your palm, जो आपका नाक है, नाक के पास आप अपना फिंगर रखो, तो आपको ना ऐसा हवा हवा आते जाते फील होगी. So keep your finger, keep your nose, keep your finger somewhat away from the nose. जो नाक है आपका, नाक के थोड़ा सा नीचे आप अपना फिंगर रखिए या पाम रखिए. ठीक है, फिंगर रख के आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि कुछ हवा पास हो रहा है, आपके नाक में से कुछ हवा निकल रही है. ओके, फाइन. तो इतना ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करो, कुछ पानी पियो, एक गुड पानी पी के जब आप देखोगे, सेम टाइम आप अपना दूसरा हाथ आपके थ्रोट के ऊपर रखो. जब आप निगल रहे हो वो टाइम आप देखोगे कि जो आपका ब्रीथिंग है, जो आपके नाक से हवा जो पास हो रही थी, वो जब आप स्वॉलो कर रहे हो, जब आप निगल रहे हो खाना या पानी, तो वो टाइम पे आप फील नहीं करोगे. डिड यू अंडरस्टैंड इट? समझ में आया क्या करना है? See, keep your palm around an inch away from your nose. Feel your breathing out. Do not remove it until you have finished the activity. Be steady for 1 to 2 minutes. Now take a piece of any fruit, chew, and before swallowing it, keep fingers of other palm on your throat. Or did you notice what happened to your breath as you try to swallow? जब भी आप कुछ निगलने की कोशिश करते हो, वो टाइम पर आपकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक आप स्वॉलो कर रहे हो वो टाइम पे. क्यों? क्योंकि आपका एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, तो टाइम पे एयर आपके लंग्स में नहीं जाती है, या फिर एयर लंग्स के बाहर ट्रेकिया के थ्रू नहीं आती, क्योंकि एपिग्लॉटिस बंद है. तो वो टाइम पे जब आप स्वॉलो कर रहे हो, वो टाइम पे देखोगे कोई हवा पास नहीं हो रही है आपके नाक से, कोई हवा नहीं आ रही है. ओके, यू विल फील दैट. नॉर्मली अगर आप फिंगर रखो, फर्स्ट क्या करो, आप डू दिस एक्टिविटी अलोंग. जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो ना, ये आप खुद से करके देखो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. आपको क्या करना है, आपका एक फिंगर नाक के नीचे रखना है, नाक के सामने अपना हाथ या फिंगर रखो. ओके, नाक के सामने थोड़ा सा नीचे. ओके, तो आप देखोगे कुछ एयर पास हो रही है आपके नाक से, आप फील करोगे. उसके बाद आपको क्या करना है, पानी पीना है या कुछ फ्रूट या कुछ भी, रोटी या कुछ भी आपको निगलना है. ओके, चबा के फिर निगलना है. ठीक है, चबा के निगलना है. जब आप देखो सेम टाइम पे आपका एक हाथ से आप अपने थ्रोट को टच करोगे और एक हाथ से आप अपने नोज के सामने रखोगे. ओके, जब आप स्वॉलो कर रहे हो वो टाइम पे आप देखोगे कि वहाँ पे एयर पास नहीं हो रही है. खुद से करके देखो. इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. एक हाथ से आपको थ्रोट पे रखना है और स्वॉलो करना है, एक सेम टाइम आपको नाक के पास भी हाथ रखना है और फील करना है कि वहाँ पे थोड़ी देर के लिए कोई एयर पास नहीं हो रही है, कोई हवा आते हुए नहीं लग रही है आपको. ओके, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू स्वॉलो without deflecting it into windpipe? What is helping you to swallow without deflecting in epiglottis, of course. Now, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. एक बार आप समझ जाओगे, यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. Okay, so now let's talk about mechanism of respiration in human beings.
So we know that breathing is the process of inhaling and exhaling. Breathing क्या है? Inhale करना मतलब आप हवा अंदर ले रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो. Exhaling मतलब हवा बाहर निकाल रहे हो, सांस बाहर निकाल रहे हो. So breathing is the process of inhale करना, हवा अंदर लेना, exhale करना, हवा बाहर निकालना. So inhaling and exhaling. The organs involved are mainly the lungs. तो lungs और the organ involved. You can't see your lungs. आप ऊपर से तो अपने lungs को नहीं देख सकते क्योंकि उसके ऊपर क्या है? मसल्स है, रिब केज है, रिब्स है आपके, ये रिब्स है, ठीक है. रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसके ऊपर फिर फैट है, फिर स्किन है. सो आप अपने लंग्स को तो नहीं देख सकते बट यू कैन फील इट. हाउ? पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट एंड ब्रीथ इन वेरी डीपली. आपके चेस्ट के ऊपर हाथ रखें और उसको डीपली ब्रीथ करें. फिर क्या होगा? डीपली जब आप ब्रीथ करोगे तो आप अपने लंग्स को फील करोगे. आप देखोगे कि चेस्ट इज गेटिंग स्लाइटली बिगर, थोड़ा सा बड़ा होगा. जब आप ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, गहरी सांस ले रहे हो, तो टाइम पे आपका चेस्ट बड़ा होगा. फिर जब आप ब्रीथ आउट करोगे एयर को, फिर चेस्ट नॉर्मल रेगुलर साइज में हो जाएगा जब आप हवा बाहर निकालोगे. ठीक है. यू हैव जस्ट फेल्ट द पावर ऑफ लंग्स. यस, तो आपने अपने लंग्स के पावर को देख लिया है बाई डूइंग दिस एक्टिविटी. आपको क्या करना है? गहरी सांस लेना है, आपका हाथ आपके चेस्ट पे रखना है. अब देखो आपका चेस्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है. उसके बाद फिर हवा बाहर निकाल देना है, ब्रीथ आउट. उसके बाद अब देखोगे चेस्ट का साइज नॉर्मल हो गया. So this is the power of your lungs. But the problem is the lungs themselves can neither draw in air nor push it. लंग्स अपनी खुद ही से हवा अंदर नहीं ले पाते हैं, ना ही अपनी खुद ही से हवा बाहर निकाल पाते हैं, क्योंकि लंग्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड मसल नहीं है जो इसमें हेल्प करेगा. तो लंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द चेस्ट वॉल मसल्स एंड अनदर फ्लेक्सिबल फ्लैटेंड मसल कॉल्ड डायफ्राम. और एक मसल है डायफ्राम. तो एक है चेस्ट वॉल के मसल्स जो चेस्ट के वॉल पे है, जो रिब केज के मसल्स है, एंड द डायफ्राम. डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेस्पिरेशन. So helps the lungs in moving air into and out of them. Okay, fine. So what is the role of diaphragm and ribs in respiration? Are both active in men and women? So this is a very good question. I will explain you later. ठीक है. तो फिलहाल ये देख लेते हैं कि जो आपका लंग्स है वो अपनी खुद ही से नहीं करते, बल्कि जो चेस्ट वॉल के मसल्स होते हैं एंड डायफ्राम के मसल्स होते हैं, इनकी मदद से वो मूव करते हैं एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ रिब्स. जो आपका चेस्ट वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ रिब्स. तो चेस्ट वॉल जो है ना वो रिब्स से बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, स्किन से बना हुआ है. ठीक है. तो चेस्ट वॉल में क्या क्या है? रिब्स है, मसल्स है, स्किन है. द रिब्स आर अटैच्ड टू एन एंगल ऑफ द स्पाइन. इफ यू रन योर फिंगर्स अलोंग वन ऑफ योर रिब्स यू विल नोटिस दैट इट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द स्पाइन. इसका मतलब बहुत सिंपल है. इसका मतलब कि जो आपके जो रिब्स है वो ऐसा स्ट्रेट नहीं है बल्कि ऐसा ऑब्लिक है. ठीक है. हम अभी एक फोटो से समझेंगे. ओके, एक पिक्चर से समझेंगे हम. ओके. सो व्हेन वी इनहेल द चेस्ट वॉल मूव्स अप एंड एक्सटेंड्स. जब आप सांस अंदर लेते हो आपका चेस्ट वॉल जो है मूव अप एंड एक्सपैंड्स, तो बड़ा होता है स्लाइटली. दिस कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. आपका चेस्ट वॉल का साइज बड़ा होता है एंड इस वजह से आप का जो चेस्ट की कैविटी है वो इंक्रीज होती है, चेस्ट के अंदर का स्पेस इंक्रीज होता है और लंग्स फूलते हैं, हवा अंदर जाता है. ठीक है. The diaphragm may be imagined as the floor. If your chest cavity is the room. Suppose मान लेते हैं आपका जो चेस्ट कैविटी है वो एक रूम है. ठीक है. एक रूम है आपका चेस्ट कैविटी जो आपके थोरैक्स का स्पेस है. ठीक है. इट इज़ अ रूम. अब ये रूम में जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब फर्श, जो फ्लोर है जहाँ पे टाइल्स जहाँ पे आप चलते हो, पैर रखते हो, दैट इज़ द फ्लोर. So if you think of the chest cavity as a room, diaphragm is relaxed when we breathe out. So जो floor है वो diaphragm है. Floor क्या है? diaphragm है. ठीक है. We'll understand it from the more perfectly from the diagram. Okay. So when the diaphragm is relaxed when we breathe out, it is in the shape of a dome and the convex side of the dome extending into the chest wall.
तो डायफ्राम जो होता है एक डोम शेप्ड होता है। डोम मतलब ऐसे, तो ये डोम शेप है, राइट। एक्सक्यूज मी। So this is your diaphragm. Okay. So diaphragm is a dome shape. Now ये वाला जो साइड है ना वो कॉन्वेक्स साइड है। What happened to the color? So this side is the convex side, this one, and this is the concave. So this ये वाला जो साइड है ना ये रिब्स के साइड का है, लग्स के साइड का है। सो इट इज, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग इनहेलेशन फ्लैटन्स, जब वो फ्लैट हो जाता है, जब रिलैक्स करता है तो डोम शेप हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगी, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर हम टेक्स्ट बुक देखेंगे। ओके, अब अपना फ़ोन थोड़ा सा खड़ा कर लें एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास रिब केज है। ये जो अंदर का स्पेस दिख रहा है ना आपको, उसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी। अंदर जो जगह दिख रही है ना रिब्स के बीच में, दैट इज द चेस्ट कैविटी। ओके फाइन। तो ये जो है ना रिब्स, रिब्स देखो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ऐसे ऑब्लिक है। देख रहे हो आप, ऐसे टेढ़े, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि वो ऐसे हैं। ऐसे सीधे नहीं है, बल्कि वो ऐसे हैं। ठीक है, देख रहे हो, ऐसे हैं, ऑब्लिक है, वही उसमें बोल रहे थे। सो दिस इज ऑब्लिक। ठीक है, तो ये जो आपके रिब्स के बीच में ये वाला जो बोन है ना, इसको स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। बीच में जो रहता है, और रिब्स इसको अटैच करते हैं। रिब्स इसको ऐसे अटैच करते हैं। ठीक है, स्टर्नम को, ये रिब्स हैं। ओके, ये जो साइड में है ना उसको रिब्स बोलते हैं, और जो बीच में है स्टर्नम, स्टर्नम को सारे रिब्स अटैच है। और जो पीछे दिख रहा है ना, पीछे ये पीछे जो है, ये इसको वर्टिब्रे बोलते हैं, वर्टिब्रे। ठीक है, पीछे जो है वो वर्टिब्रे हैं, और ये जो सामने है ये रिब्स हैं। अब हम रिब्स को काउंट करते हैं, कितने रिब्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 ऐसे ही होते हैं, 11 12। हमारे पास एक साइड 12 रिब्स, दूसरे साइड 12 रिब्स, तो इसको मैं पेयर्स बोल सकती हूँ। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। अगर मैं टोटल पूछूं तो 24 रिब्स होते हैं आपके पास, 24 रिब्स उसमें, या फिर 12 पेयर्स बोल सकते हो। फाइन। ठीक है, ये जो आप अंदर रेड रेड देख रहे हो ना, ये आपका है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम मसल है, इसको बोलते हैं डायफ्राम मसल। और ये जो रिब्स के बीच में जो रेड रेड देख रहे हो वो मसल है, दिस इज द मसल। इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स, कोस्टल मतलब रिब्स। तो रिब्स के बीच में जो मसल है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। आया समझ? इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दिस इज द इंटरकोस्टल मसल, जो मैं रेड से डाल रही हूँ ना, 2 रिब्स के बीच में जो है ना उसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। सो दिस इज द इंटरकोस्टल मसल। और ये जो है ना, ये है डायफ्राम। डोम शेप है, ये डोम शेप। तो ये डोम शेप डायफ्राम है, और ये अंदर जो है ना वो चेस्ट कैविटी है। जो अंदर वाइट वाइट खाली जगह दिख रही ना, इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी। तो ये जो कॉन्वेक्स वाला है ना वो चेस्ट कैविटी के साइड है। ठीक है, अब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझेंगे। एक अच्छा डायग्राम ले लो।
Excuse me. So I think कुछ some students were having doubt कि मैम which lung, कौन सा लंग बड़ा होता है, कौन सा लंग छोटा होता है. So look it here. ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग. ठीक है, यहाँ पे आप ये छोटू सा देख रहे हो, ये दिस इज द हार्ट, दिस इज द हार्ट. और आप देख रहे हो हार्ट पूरा लेफ्ट लंग के साइड है, तो लेफ्ट लंग इसलिए छोटा हो गया. राइट लंग तो पूरा अच्छा बड़ा है. लेफ्ट लंग के साइड हार्ट आ गया, तो राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट. दिस इज द डोम शेप डायफ्राम. और ये किस में है, चेस्ट कैविटी में है. और ये जो देख रहे हो ना, दिस इज द एल्वेलाई, ये लंग्स का हम हिस्सा है. दिस इज द एल्वेलाई. और ये है ब्लड कैप, ये है ब्रोंक्यूल्स, दिस इज द वेन, दिस इज द आर्टरी. ओके फाइन. हम लंग को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं. जो राइट लंग है उसमें, राइट लंग बड़ा होता है, उसमें 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब. और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 ही लोब होते हैं, अपर एंड लोअर. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. ये वाला देखो, ये वाला क्या है, दिस इज योर ट्रेकिया. ट्रेकिया इज डिवाइडिंग, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई. दिस इज द लंग्स. ये डायफ्राम है. फाइन. इसमें अच्छे से दिख रहा है, देखो कौन सा लंग बड़ा है. ये वाला लंग अच्छा बड़ा है और ये वाला लंग देखो छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आ गया. हार्ट लेफ्ट लंग की जगह ले रहा है. देखो इनहलेशन और एक्सहेलेशन का अच्छा सा डायग्राम है. पहले इनहलेशन देखो, ये है डायफ्राम, ये दिख रहा है, ये वाला जो एरो से बता रहा है, दिस इज द डायफ्राम, दिस है इंटरकोस्टल मसल्स. जब आप इनहेलेशन करते हो वो टाइम पे क्या होता है, आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है. दिख रहा है फ्लैट. और यहाँ पे डोम शेप ही है, यहाँ पे दिख रहा है डोम शेप एक्सहेलेशन. इनहेलेशन के टाइम पे हवा अंदर आ रही है ट्रेके से, एक्सहेलेशन के टाइम हवा बाहर जा रही है ट्रेके के थ्रू, है ना. सो ये डायफ्राम रिलैक्स हो गया, नॉर्मल डोम शेप ले लिया. यहाँ पे कांटेक्ट होके, यहाँ पे कांटेक्ट होके एकदम फ्लैट हो गया और नीचे भी आ गया, है ना. फॉलो दिस एरो, नीचे आ गया. तो जब वो फ्लैट होके नीचे आ जाता है तो ये जो कैविटी है, ये जो स्पेस है, ये बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इनहलेशन या इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम नीचे आ जाता है और जो चेस्ट की कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, तो लंग्स फूल जाते हैं अच्छे से. वहाँ पे फिर प्रेशर कम हो जाता है एंड फिर वो लंग्स फूल जाते हैं, मतलब उनके अंदर हवा आ जाती है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड. डायफ्राम नीचे आ जाता है, चेस्ट की कैविटी बड़ी हो जाती है, चेस्ट बड़ा हो जाता है, चेस्ट की कैविटी अंदर स्पेस बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से पूरा हवा अंदर आ जाता है. और यहाँ पे डायफ्राम क्या है, डोम शेप हो गया, चेस्ट की कैविटी छोटी हो गई. ठीक है, छोटी हो गई चेस्ट की कैविटी,
छोटी होगी चेस्ट की कैविटी, तो इस वजह से हवा पूरा बाहर चला जाता है, दैट इज एक्सलेशन। एक्सलेशन में डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और नॉर्मल डोम शेप ले लेता है। देखिए डायफ्राम का शेप है डोम शेप, तो एक्सलेशन के टाइम पे डोम शेप है, इसका मतलब वो रिलैक्स है। इनहेलेशन के टाइम पे वो कैसा है, फ्लैट है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना है बस। एक पॉइंट है कि डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, फ्लैट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। फ्लैट होने को ही कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसलिए वो फ्लैट हो गया। एक्सलेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स हुआ और वो अपने नॉर्मल डोम शेप में है। इनहेलेशन के टाइम पे हवा चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है चेस्ट की कैविटी, हवा पूरा अंदर आ जाता है। एक्सलेशन के टाइम पे चेस्ट की कैविटी छोटी हो जाती है, इसलिए हवा पूरा बाहर चला जाता है। इतना ही आपको समझना है, ओके। अब ये वाला डायग्राम देख लो थोड़ा, यहाँ पे देखो, ये आपका ट्रेकिया है, ये आपका ब्रोंकस है, फिर ब्रोंकियोल्स है, ये आपका लंग्स है, ये आपके रिब्स हैं। ठीक है, तो ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये पूरे रिब्स हैं, और ये जो रिब्स के बीच में जो ऐसा दिख रहा है ना छोटा छोटा, दैट इज द मसल, दिस इज द मसल, ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। और ये हमारा डायफ्राम। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपका हार्ट, देखो हार्ट आ गया इसलिए लेफ्ट लंग छोटा नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा है, और राइट वाला कितना बड़ा है। ये आपका लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, एपिग्लॉटिस भी दिखा है यहाँ पे। द पिक्चर इज नॉट क्लियर, ओके। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैविटी क्या है, तो ये है नेसल कैविटी, दिख रहा है, दिस वन नेसल कैविटी। ओके, अब इसमें आप बताओ जो लेबल किया गया है वो क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। जो ये है इसको बोलते हैं नेसल कैविटी, बी है लंग्स, सी है डायफ्राम। ठीक है, चेक इट कि आपने सही जवाब दिया था कि गलत। यहाँ पे भी देखो, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, ये ट्रेकिया है, ये नेसल कैविटी है, ये ट्रेकिया है ये वाला, ओके। ओके, तो ये जो आपको है ना, ये जो दिख रहा है रिब्स के अंदर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी। रिब्स के अंदर का जो स्पेस है, और ये जो स्पेस है उसको बोलते हैं थोरैक्स। जो रिब्स के अंदर जो चीज़ें आती है ना उसको थोरैक्स, रिब्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से यहाँ तक जहाँ पे ख़त्म, मतलब ख़त्म भी नहीं, इतना रीजन जो है उसको थोरैक्स बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, लंग्स होते हैं और हार्ट होता है, और उसके नीचे डायफ्राम के नीचे बेसिकली, डायफ्राम के ऊपर जो भी रहता है ना उसको थोरैक्स बोलते हैं, और डायफ्राम के नीचे जो होता है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इसको थोरैक्स बोलेंगे,
और इसको बोलेंगे एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में क्या रहता है, लीवर रहता है। डायफ्राम के जस्ट नीचे आपको लीवर मिलेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड स्टमक मिलेगा। राइट साइड लीवर होता है, लेफ्ट साइड स्टमक होता है। डायफ्राम के ऊपर के जो भी चीज़ है उसको थोरैक्स बोलेंगे। थोरैक्स में क्या क्या आता है, लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, डायफ्राम इज द पार्टीशन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, के बीच में एक पार्टीशन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन समझे। इनहेलेशन में क्या होता है, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है क्योंकि डायफ्राम नीचे चला गया। एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम नॉर्मल रिलैक्स फॉर्म में रहता है। ओके तो आपके उसमें क्या था कि सपोज मान लेते चेस्ट कैविटी एक रूम है, रूम का जो फ्लोर है, फर्श है, वो डायफ्राम बना रहा है। ठीक है ना, रूफ फ्लोर जो है, फ्लोर वो डायफ्राम बना रहा है। फाइन। सो इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने की वजह से वहाँ पे जो जगह है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी बढ़ गई। वहाँ पे इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है। इंटरनल प्रेशर क्यों कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर लाइफ, दैट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम। ठीक है। और हवा, एयर, एयर कभी भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस इज द डॉलर, बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डॉलर बोलती हूँ, डॉलर पॉइंट, मतलब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवा कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब डायफ्राम नीचे चला गया, फ्लैट होके नीचे चला गया, तो चेस्ट कैविटी बढ़ गई। पहले ऐसा था डायफ्राम। चेस्ट कैविटी को नोटिस करो आप लोग, यू नोटिस द चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो ये है आपकी चेस्ट कैविटी। तो यहाँ पे चेस्ट कैविटी देखो, यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा दिख रहा है। कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये कि ये यहाँ पे डायफ्राम क्या है, यहाँ पे डायफ्राम नॉर्मल डोम शेप है, यहाँ पे फ्लैट हो गया। यहाँ पे जगह बढ़ गई, जगह बढ़ गई मतलब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वी फॉर वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे वी फॉर वॉल्यूम कम है ना। तो मैंने कहा था जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम, तो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। अब बाहर का जो हवा है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेशर कम है, तो क्या होगा, हवा अंदर खींच के आ जाएगी, अंदर आ जाएगी हवा बाहर से, बाहर एटमॉस्फेयर से हवा अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, तो बाहर का इसके हिसाब से बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे अंदर हवा आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो हवा बाहर चल जाएगी, बाहर का प्रेशर
यहाँ चेस्ट के हिसाब से, लंग्स के प्रेशर के हिसाब से कम है तो बाहर चल जाएंगे। तो इस तरह से होता है। तो देखो लंग्स तो कुछ नहीं कर रहे, लंग्स कुछ कर रहे हैं, जो आपका डायफ्राम है, जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वही क्या कर रहे हैं, चेस्ट की कैविटी को बढ़ा दे रहे हैं, चेस्ट की कैविटी को बढ़ा दे रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से हवा अंदर और बाहर आ रही है। ठीक है, सो डायफ्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायफ्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो अपना इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपके रिब्स है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके चेस्ट कैविटी को बड़ा और छोटा करने में। ठीक है, तो जो आपके लंग्स हैं, यहाँ पे प्लूरा के बारे में डिस्कस किया गया है कि नहीं? फिर भी मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ प्लूरा, इससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लूरा का मैं एक डायग्राम, एक फ़ोटो लेके आती हूँ क्या। सो सी, ये आपका जो है, ये आपका है लंग्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है प्लूरा। जो येलो कलर का देख रहे हो दैट इज़ द प्लूरल फ्लूइड। और जो साइड में पर्पल कलर का देख रहे हो ना, दैट इज़ द योर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हो एक दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, दो पर्पल कलर के मेम्ब्रेन से, एक अंदर है और एक बाहर है। बाहर वाला रिब्स को अटैच्ड है, बाहर वाला रिब्स को अटैच्ड है। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी रिब्स एक्सपैंड होते हैं तो साथ में लंग्स भी एक्सपैंड होता है, क्योंकि उसका प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स की कवरिंग है ना, जो लंग्स को लाइनिंग करता है, लंग्स को कवर करता है, उसको बोलते हैं प्लूरा। जो हार्ट को कवर करता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे जो लंग्स है वो उसको जो कवर कर रहा है दैट इज़ प्लूरल मेम्ब्रेन। एक डबल मेम्ब्रेन होता है, एक अंदर से मेम्ब्रेन देख रहे हो और एक बाहर से देख रहे हो। बाहर वाला रिब्स को अटैच्ड है ना, ये जो है बाहर जो ऐसा है वो रिब्स हैं, तो बाहर रिब्स को अटैच्ड है। तो जब भी चेस्ट वॉल रिब्स एक्सपैंड होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन भी इसको चिपक के है ना, तो वो भी एक्सपैंड होता है। इस वजह से लंग्स की जो कैविटी है वो बढ़ जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सर नहीं हो रहा।